यस बेटे, ये क्वेश्चन को वी कैन लीव, इसका स्टेटमेंट वो वाइल टेकिंग द पिक वो आया नहीं, उसको छोड़ दे. वी कैन स्टार्ट विद दिस. वी कैन स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्लाइड फर्स्ट. यहाँ से कर लेते हैं स्टार्ट. यस, हाँ जी बेटे. This revision can be started only with the assumption that you have read the chapter, because otherwise without reading majority of you will not be able to answer. So मैं assume कर रही हूँ कि आपने पढ़ा है क्वेश्चन को, चैप्टर को you have read, that is why you will be able to read it. ठीक है, चलिए let us start. Our first question is, who believed that folklore was national literature? It was the most trustworthy manifestation of people's real thoughts and characteristics. C part. हाँ जी बेटे. C part. Just a second, let me cross check. Yes, this is Natesa Sastry, जो South India में those who, the person who collected all these Tamil these literature folklore tales, that was Natesa Sastry. That means now you have to remember, you have to learn this statement. तभी आपको बता पाओगे कि who was the person who said this. Very right. Next is, during the Swadeshi movement in Bengal, a tricolor flag was designed. Which three colors were used in that? Option D. Option D. एक मिनट बेटे, Option D. check from your book also. Just a minute, still students are coming. In the meantime, you just check from the book, because in the last page of the book, two flags have been mentioned. है ना, एक था हमारा जो ये स्वदेशी मूवमेंट वाला बनाया था, एक था बाद में मेड बाय महात्मा गांधी ऑल्सो. सो लेट अस चेक कि कौन सा है ये. लेट मी चेक द आंसर ऑल्सो. हाँ जी, विच वन यू हैव टोल्ड मी? D part. D part. Have you read it from the book? Because in my answer ki it is Option A. Option A is the right answer है. Red, green and yellow. Later on I show you the slide also. Just a second, let me try. Red, green, yellow. Let me show. चलो मैं बाद में ही दिखाती हूँ बेटे, सारा करके ना. Then I show the flag again. During when we did this chapter, at that time all these pictures were shown to you. बाद में दिखा देती हूँ, no problem. A is the right answer. Red, green and yellow. Red, green and yellow. Yes, yes, very right. ये याद कर लेना है आपने. स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल वाला जो ट्राइकलर फ्लैग है, रेड, ग्रीन, येलो. नेक्स्ट है, द फ्लैग हैड 8 लोटसेस ऑन इट. व्हाट डिड दे रिप्रेजेंट? जो फ्लैग के ऊपर डिजाइन ऑफ लोटस था, 8 लोटसेस. C option. हाँ जी बेटे, विच वन? C option. यस, 8 प्रोविंसेस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया. जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को 8 पार्ट्स में, जैसे प्रोविंस मतलब प्रेजेंट डे की जो स्टेट बोल सकते हैं, तो दे फॉर देयर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस दे डिवाइडेड द कंट्री इनटू 8 प्रोविंसेस. तो दीज वर शोन विद द हेल्प ऑफ 8 लोटसेस. वेरी राइट. नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है ये वाले क्वेश्चंस बेटे. हु पेंटेड द फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता इन 1905? C option. Option A. ध्यान से पढ़िए. Option C. 1905. Option A. Please check from the A book. option. Check. Just a minute. Check from the book first. Ma'am, page number 72. Page number is, in my book it is page 71. C option is ma'am. Abanindranath Tagore. Is it? Abanindranath Tagore. Abanindranath Tagore का था ये वाला नाम. ठीक है, Abanindranath Tagore. Yes. Who wrote Vande Mataram? Option C. Option. Think again. Rabindranath Tagore. This is wrong. Bankim Chandra Option A. Chattopadhyay. A option. Bankim Chandra Chattopadhyay. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. हाँ, ये वाला है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. जो रविंद्रनाथ टैगोर है, उन्होंने ही रोट अवर नेशनल एंथम, जनगण मन जो है ना, दैट इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. और जो हमारा नेशनल सॉन्ग है
दिस वंदे मातरम, दैट इज रिटन बाय दिस बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. याद रखना है, कंफ्यूज नहीं करना दोनों को. नेक्स्ट, which famous writer from Bengal led the movement for folklore as a part of nationalism? हाँ जी, राइटर है, अब कोई पेंटर नहीं है, राइटर. रविंद्रनाथ टैगोर. Option C. Rabindranath Tagore. रविंद्रनाथ Option C. टैगोर. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर. अब आप ये देखो, दीज क्वेश्चंस जितने भी हमने 5-6 किए हैं, they have been taken from the last 2 pages of the chapter, so very very important from that point of view. हाँ जी. Now in between, which 2 Muslim brothers supported the movement along with Gandhi ji? Muhammad Ali and Shaukat Muhammad Ali. Ali and Shaukat Ali. Very good, shabash. Muhammad Ali, B option, Muhammad Ali and Shaukat Ali. Popularly they are known as, मतलब कई बार फुल नेम इज नॉट. Ali हाँ, वेरी राइट, अली ब्रदर्स. ठीक है, जब भी अली ब्रदर्स आता है तो दैट मीन्स दीज 2 ब्रदर्स, देयर नेम्स आर मेंट बाय अली ब्रदर्स. वेरी राइट. नेक्स्ट, व्हेन डिड द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगिन? कब स्टार्ट हुआ ये? 1919. 1920. एक बार जरा बुक खोल लीजिए, बुक खोल के देखिए जरा, उसमें देखो एक हेडिंग है 1921. 21. हाँ जी, फर्स्ट पैरा में ही दिया हुआ है 1921. 1919 में. 1921. हाँ, वेरी राइट, ये सी इज द राइट ऑप्शन, राइट आंसर. बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल व्हाट हैपेंड इन 1919. इसमें हुआ था जलियांवाला बाग इंसिडेंट 13th of April, और दूसरा हुआ था इसमें रॉलेट एक्ट का पास होना, वो 1919 में हुआ था. बट ये जो है ना नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, दैट स्टार्टेड इन 1921. चलिए, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन. एक्सक्यूज मी मैम. यस. मैम 1919 से 1921 तक क्या हुआ था? उसके बीच में अभी पहले ये खिलाफत कमेटी बनी थी. ठीक है, पहले कमेटी बनी थी, फिर इन बिटवीन जो विद इन द कांग्रेस पार्टी ऑल द लीडर्स वर नॉट वेरी मच हैप्पी विद गांधी जी डिसीजन की भी हमें खिलाफत कमेटी वालों के साथ वी शुड कोऑपरेट, उनका भी साथ लेना चाहिए, या वी शुड ज्वाइन विद देम, ऐसा कुछ, मतलब मेनी लीडर्स वर अगेंस्ट दिस आइडिया. तो अभी ड्यूरिंग दैट टाइम डिस्कशंस वर गोइंग ऑन, और फिर जाके अल्टीमेटली ये तो नहीं होता ना कि एकदम से अगर कोई मूवमेंट स्टार्ट हुई तो दैट डज नॉट मीन कि एकदम जाके खड़े हो गए कि हाँ जी ये स्टार्ट हो गई. उसके लिए पहले प्रेपरेशंस करनी पड़ती हैं, कंसल्टेशंस करनी पड़ती हैं. तो ड्यूरिंग ये टाइम 1919 से लेके जब खिलाफत कमेटी बनी, इन बिटवीन ये जो 1.5-2 साल का टाइम था, तो तब खिलाफत कमेटी वालों के साथ कांग्रेस की बातचीत हो रही थी, वी कैन से कम्युनिकेशन चल रही थी कि कैसे कैसे आगे होगा, या हम इस मूवमेंट में क्या करेंगे, व्हाट विल बी डन throughout the country, how we will show our non cooperation, मतलब प्लानिंग जिसको बोलते हैं ना, तो दैट प्लानिंग वाज टेकिंग प्लेस. तो अल्टीमेटली ये 1921 का मतलब है कि इन दिस जनवरी 1921 था, तो उस समय इसको अनाउंस किया गया, डिक्लेयर किया गया. तो जब कोई डिक्लेरेशन करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उसके बाद प्लानिंग करनी है, प्लानिंग इज डन बिफोर हैंड. तो 1921 से पहले फॉर 1.5 year या 2 years प्लानिंग की गई कि हाउ विल दिस मूवमेंट प्रोसीड, और 21 में इसको अनाउंस किया गया, डिक्लेयर किया गया, ये हुआ था. चलिए जी, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ द नॉन. हाँ जी, ऋषिका रेज्ड हैंड. हाँ जी ऋषिका, you want to tell the answer, Rishika? That is why you raised hand. Are you there? It was by mistake. No, you want to answer this 11th question. That is why you raised hand. मैम ए ऑप्शन. एक मिनट में लेट मी रीड. अभी मैंने पढ़ा नहीं है, 1 मिनट में पढ़ लूँ पहले, फिर आप हाथ खड़े किया करो, ठीक है? फिर मुझे पता नहीं चलता है कि कोई प्रॉब्लम के लिए आपने हाथ खड़ा किया या आंसर बताने के लिए. सो जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. आई एम गोइंग टू रीड 11th. What were the effects of non-cooperation movement on the economic front? आप पढ़ लो. Option A. Yes, option A is the perfectly right answer. Option A. Yes, all students, those who are sure of their answer, they should tell. So option A. अब आप इसको थोड़ा learn भी कर लो. What was done? Foreign goods were boycotted. इसी को आप points भी बना सकते हो. Number 2, liquor shops were picketed. Number 3, foreign cloth was burnt in huge bonfires.
Number 4, people started wearing Indian clothes. So A is the perfectly right answer. Very good. चलिए, let us see next questions. हाँ जी. Which British officer opened fired at the Jallianwala Bagh congregation? General Dyer. General Dyer. Yes. General B Dyer. option, General Dyer. He is very infamous for this act. फेमस होता है ना, मशहूर होना. इनफेमस होता है, अब किसी बुरे काम मशहूर तो होते ही हैं, बट गलत काम के लिए भी लोग बड़े फेमस हो जाते हैं. तो ये उसको बोलते हैं इनफेमस. तो ही दिस जनरल डायर इज वेरी मच इनफेमस फॉर दिस जलियांवाला बाग. कॉन्ग्रीगेशन होते हैं इकट्ठे होना, लोगों का इकट्ठे होना किसी जगह पे, थोड़ी भीड़ का होना, दैट इज कॉल्ड. चलिए नेक्स्ट है, when and where was the खिलाफत कमेटी formed? अब इसको आई वॉन्ट जनवरी 1919 Option बॉम्बे. D. बेटे एक मिनट D पहले option. बुक चेक कर. Ma'am, D option. लेट मी चेक, लेट मी ऑल्सो चेक. हाँ जी, नाउ प्लीज टेल विच वन यू सेड. D Option D. D option. Option D. यस, डी ऑप्शन D है. option. हाँ, एक तो आपने याद रखना है बॉम्बे, ये तो याद रखना है. इसका मतलब अगर बॉम्बे हमारे ध्यान में है तो ये गुजरात को तो निकाल ही दो. वी आर लेफ्ट विद नाउ 3 ऑप्शंस. ठीक, उसके बाद फिर आपको थोड़ा पर्टिकुलरली भी यू शुड नो, ये है मार्च 1919. ये दिस इज द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट इज, हाँ जी, व्हाट वाज द रॉलेट एक्ट ऑफ 1919. व्हाट वाज मतलब इसके क्या प्रोविजंस थे. D option. B option. ओके, एनीबॉडी एल्स. D option. D option. Option D. सी या डी. D. D option. डी D ऑप्शन option. इज द राइट आंसर. क्योंकि इसका एक बड़ा इजी वे है लर्न करने का. ये 2 इयर्स का है टाइम, और यहाँ पर 3 इयर्स लिखा हुआ है ना. तो बाकी तो सेम ही है, बट यहाँ पर है दिस अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 इयर्स. डी इज द राइट आंसर. ये आपको ऐसे भी आ सकता है, मतलब एमसीक्यू फॉर्म में नहीं, वैसे आ सकता है. व्हाट वाज द प्रोविजंस ऑफ रॉलेट एक्ट. तो फिर देन यू हैव टू राइट दीज सेंटेंसेस, उसको पॉइंट्स बना लेना. नेक्स्ट, when did this infamous Jallianwala Bagh incident take place? 13 April 13 13 April April 1919. 1919. Yes, very right. ये तो सभी को पता होना चाहिए. All should know. A is the right answer. 13th April 1919. Very good. चलिए नेक्स्ट. आज मैंने आपको और क्वेश्चन भी पूछने हैं, ये एमसीक्यू नहीं पूछे जाने हैं. बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो. When did Mahatma Gandhi return to India from South Africa? 1915. Yes, 1915. B option is the right answer. 1915. Next, what did the idea of satyagraha emphasize? Emphasize मतलब Option stress A. देना. Option A. पढ़ लिया. Option A. Let me read also. आपने तो पढ़ लिया, मैं तब तक एडमिट ही करती रहती हूँ, कोई और बच्चा आ जाता है. Let me read. हाँ जी, दो ही ये ए और बी में से आप देखो, ये दोनों तो बनते ही नहीं है. हाँ जी, इन दोनों में से कौन सा, ए एंड बी में से? A. Option A. ए ऑप्शन. यस, ए इज द A राइट option. हाँ जी, वेरी राइट. फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑप्रेसर. ये एडिशनल दिया हुआ, ये करेक्ट है बिल्कुल, ए ऑप्शन. नेक्स्ट, विच एरियाज डिड गांधी ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह. ये हमारा एक Option क्वेश्चन भी है. D. Option B. B B option. option. यस, बी ऑप्शन. क्यों? क्योंकि 3 सत्याग्रह उनके लाइन वाइज है, कंसेक्टिव है 3 सत्याग्रह. 1916 में था चंपारण इन बिहार में, इंडिगो प्लांटर्स वाला. फिर खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में पीजेंट्स वाला, पीजेंट्स जो उनके लिए सत्याग्रह किया था 1917 में. और कॉटन मिल वर्कर्स के लिए इन अहमदाबाद. वेरी राइट. सो बी इज द राइट आंसर. ये क्वेश्चन भी आ सकता है फॉर 3 मार्क्स आपको. ये देखो आ गई पिक्स आ गई यहाँ. नाउ दिस पिक शोज विच आश्रम, अगर आपको याद हो. साबरमती आश्रम. यस, वेरी गुड. Sabarmati Ashram. हाँ जी, सागर नहीं, ऐसे जी नहीं, जी फॉर गन वाला नहीं, बी फॉर बैट वाला. ठीक है, साबर, SABAR, साबरमती आश्रम का है. ये टूरिस्ट हैं, जैसे लोग देखने जाते हैं ना, तो ये उनकी है. ओके, लेट अस रिकॉल अवर मेमोरीज. ये भी साबरमती आश्रम की है. ये स्टैचू ऑफ गांधी जी हैज़ बीन प्लेस्ड हियर. ये उसका ही सारा पूरा व्यू है. उसके बाद थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं ना, हमने क्या क्या किया था. हाँ जी, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ.
ये दिस नॉवल वाज रिटन बाय हिम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और लेटर ऑन इसी में वो जो वंदे मातरम वाला सॉन्ग था वो इसी में से लिया गया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। यस, ये नाउ कैन यू टेल ये कौन सा फ्लैग है? हु डिजाइंड स्वराज स्वराज फ्लैग। यस, स्वराज स्वराज फ्लैग। और डिजाइन किसने किया था? हु डिजाइंड इट? महात्मा गांधी। यस महात्मा गांधी। यस, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। हाँ जी देवी और सज्जनों, महात्मा गांधी। ये इजी तरीका पता है क्या है? ये चरखा को देख के हमें याद कर लेना चाहिए। जहाँ चरखा आ गया दैट मीन्स डिजाइंड बाय महात्मा गांधी और स्वराज फ्लैग। वेरी राइट। अच्छा, हाँ जी, ये पेंटिंग वाज डिजाइंड बाय, मेड बाय होम? अबींद्रनाथ टैगोर। यस, वेरी गुड। रविंद्रनाथ टैगोर। ये फर्स्ट इमेज थी विच वाज ड्रॉन बाय अबनींद्रनाथ टैगोर। वेरी गुड। लेट अस ट्राई टू सी अदर्स। अब ये वैसे वेराइटी ऑफ पिक्चर्स है, मतलब दैट वाज द फर्स्ट पिक्चर, फर्स्ट आइडिया, बट लेटर ऑन अदर आर्टिस्ट और भी बहुत सारे लोगों ने अलग अलग वे से भारत माता को डिज़ाइन किया। मतलब मेन थिंग इज कि भारत माता हैज़ बीन शोन एज ए मदरली फिगर, कि हम सारे ये भारत माता के बच्चे ना, इस तरीके से वेरियस इमेजेस ऑफ भारत माता वर ड्रॉन बाय डिफरेंट आर्टिस्ट लेटर ऑन। हाँ, ये वाला देखो, ये आई वॉज ट्राइंग टू सर्च एट दैट टाइम। ये कौन सा फ्लैग है भाई? बंगाल फ्लैग, ट्राई कलर। यस, जो हमारा कौन सा था, स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल वाला किया था ना, अभी क्वेश्चन आया था, तो स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल के टाइम पे दिस फ्लैग वाज मेड। अब आप इसको याद कर लो कौन कौन से कलर्स हैं, ग्रीन, येलो एंड रेड, और ऊपर लिखा हुआ है, दिखाए हुए 8 लोटसेस विच शो द 8 प्रोविंसेस ऑफ द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। ओके, यस, ये कौन सी पिक्चर है हमारी? दिस इज जस्ट द इमेज ऑफ टाइटल पेज। बुक है हमारा ये, फोकलोर इन साउथ सदर्न इंडिया। हु रोट दिस, हु कलेक्टेड दिस? पंडित नतेसा शास्त्री। ठीक है, ये भी याद कर लेना, फोकलोर इन सदर्न इंडिया, नतेसा शास्त्री। ओके, नेक्स्ट है हमारी, ये नतेसा शास्त्री जी की पिक्चर है, ये उनकी इमेज है। ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की इमेज है। ये अवनींद्रनाथ टैगोर। ये हमारा, ये भी मतलब इसका कोई पेंटर का नाम नहीं है, ये सिर्फ एक डिज़ाइन, अलग अलग जैसे आर्टिस्ट है ना, जैसे मैनी आर्टिस्ट आर वर देयर, अभी भी हैं लोग बनाते हैं। तो ये एलिफेंट और टाइगर वगैरह को बनाने का मतलब है लाइन को, कि भी शोज द माइट एंड पावर, कि भी ये माइट और पावर के, ताकत के जो सिंबल्स होते हैं ना, वो एनिमल्स की फॉर्म में उसको दिखाया हो कि इतनी ताकतवर है, इतनी बड़ी है भारत माता, इस तरीके से इट हैज़ बीन ट्राइड टू शो हेयर। चलो, ये तो हमारा चैप्टर आ गया। चलो, हम भारत माता को सामने रख के अब हम और क्वेश्चंस रिवाइज करते हैं। ठीक है, अब ये आपने आंसर करने, इनकी स्लाइड्स नहीं है, यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ जी, आई विल स्पीक द ऑप्शंस ऑल्सो, यू विल हैव टू टेल। द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन, ऑप्शंस हैं जनवरी 1921 या दिसंबर 1921। दिसंबर जनवरी 1920। फिर से जनवरी 1920। जनवरी Yes. 1920। जनवरी 9। जनवरी 1921 क्वेश्चन था, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921। थोड़ा थोड़ा अपने मन में बोल के लर्न कर लीजिए, जनवरी 1921 में स्टार्ट हुआ था। ओके, Why was this non-cooperation movement called off by Gandhi ji? Why was this non-cooperation movement called off by Gandhi ji? Called off ड्यू मतलब? टू चौरी चौरा इंसिडेंट। Very good, शाबाश। Due to Chauri Chaura incident. ठीक है, where is this Chauri Chaura place located? In which state? उत्तर प्रदेश। Yes, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। Very good. उत्तर प्रदेश। ये कल हमने मैप में भी रिवाइज किया था। भाई बच्चों, अगर वीडियो ऑन कर लोगे, मैंने let me tell you very surprisingly, I don't recognize the students of 10th green class because you never keep your videos on, है ना? मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं है पहले, और आप वीडियो भी ऑन नहीं करते। I don't know who are the students. What is the problem in keeping video on? मुझे सिर्फ 2 बच्चों का पता है, भूमि और मोक्ष तनेजा, खुशी कुमारी,
हर्ष कलेर. इन 4 स्टूडेंट्स को मैं बाय फेस जानती हूँ, रेस्ट आई डोंट नो बिकॉज यू नेवर कीप वीडियोज ऑन. एटलीस्ट ड्यूरिंग डिस्कशन टाइम तो वीडियो ऑन होना चाहिए आपका. नेक्स्ट. अच्छा, अब नाउ लिसन केयरफुली. विच अमंग द फॉलोइंग पास्ड द रॉलेट एक्ट ऑफ 1919? मतलब which among the following, now I tell the 4 options, you have to tell which of these passed the Rowlatt Act of 1919. Options है statutory commission, second है imperial legislative council, third है government of India, last है British council. Imperial Imperial Legislative Council. Legislative Council. Imperial. Yes, very right, that's the right answer. Imperial Legislative Council इन्होंने बनाया था, पास किया था ये Rowlatt Act. Okay. नेक्स्ट है हु अनाउंस्ड ए वेग ऑफर. वेग मतलब जिसको बोल सकते हैं ढीला ढाला सा, मतलब वैसे ही टाइम पास करने के लिए या किसी को थोड़ा सा शांत पीसफुल करने के लिए कोई बात कह दी जाए, दैट इज कॉल्ड वेग. हु अनाउंस्ड ए वेग ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया इन 1929? ऑप्शंस हैं लॉर्ड कर्जन, फिर है वाइस रॉय इरविन, फिर है लॉर्ड विलियम बेंटिक और लास्ट है लॉर्ड माउंटबेटन. Viceroy Irwin. यस, वाइस रॉय इरविन इज द राइट आंसर. ये जब महात्मा गांधी को अपना स्टार्ट करना था, उन्होंने सॉल्ट मार्च वाला सिविल डिसोबीडियंस ड्यूरिंग दैट टाइम, तो लॉर्ड इरविन ने ये ढीला सा प्रॉमिस किया, मतलब करना नहीं था उन्होंने, दे जस्ट ट्राई टू पेसिफाई, थोड़ा सा शांत करना चाहते थे गांधी जी को और बाकी लोगों को, तो दे जस्ट अनाउंस्ड. तो वाइस रॉय इरविन वाज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम. ओके. नेक्स्ट. Who created the first image of Bharat Mata? Abhinendranath Tagore. नहीं, एक मिनट में अभिनेंद्रनाथ. ऑप्शन बोलती हूँ. नहीं, ऑप्शन बोलती हूँ, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना चाहिए. एक मिनट, सम स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास इज ट्राइंग टू गेट एडमिटेड. एनी हाउ, जो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं उसमें से फिर हमने देखना है कि इनमें से किसने पहली बार बनाई, अदरवाइज तो कोई और भी आंसर हो सकता है. ऑप्शन है राजा रवि वर्मा, सुभाष चंद्र बोस एंड बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. इनमें से किसने बनाई? फर्स्ट वर्ड रवि वर्मा. नहीं बेटे, मैं क्या कह रही हूँ, जो ऑप्शन हमें पेपर बंकिम में चंद्र. दिए, हाँ बंकिम चंद्र. हाँ, मैं आई एम ट्राइंग टू बंकिम से चंद्र. कि आंसर, करेक्ट आंसर कोई और भी हो सकता है, बट हमने अपनी नॉलेज वाला नहीं बताना ना उस समय, तो वट एवर इज गिवन टू अस इन द MCQ वी हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम दैट ओनली, उसी में से बेस्ट पॉसिबल चूज करना पड़ेगा. तो आई गेव द ऑप्शंस राजा रवि वर्मा, सुभाष चंद्र बोस एंड बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. तो अब इनमें से सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, राजा रवि वर्मा ने भी नहीं बनाई, तो बाकी बच गए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. ठीक है. अच्छा, एक मिनट, ये मैम बट डाउटफुल रवि लग रहा है. वर्मा एक मिनट, लेट मी टेल वन मोर थिंग. एक थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, एक थे अवनींद्र नाथ टैगोर. ठीक, आप जरा बाद में लेटर ऑन यू प्लीज रीड द पेज वेरी केयरफुली. आई फाइंड सम डाउट हेयर. रीड द पेज वेरी केयरफुली, लास्ट 2 पेजेस, वहाँ से आप क्रॉस चेक करिएगा कि किसने पहले बनाई थी. ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे आई एम फीलिंग लिटिल बिट डाउट हेयर. ठीक, ओके. नेक्स्ट इज फ्यूज मैम. हाँ जी, मैम यहाँ पर बॉक्स में लिखा है अभिनेंद्रनाथ टैगोर लाइक रवि वर्मा बिफोर हिम ट्राइड टू डेवलप अ स्टाइल ऑफ पेंटिंग ऑफ भारत माता. नहीं, स्टाइल ऑफ पेंटिंग की बात और होती है, ये नहीं एग्जैक्टली कहाँ कहीं भी है कि राजा रवि वर्मा ने बनाई पहली बार, ऐसा कुछ नहीं. राजा रवि वर्मा वाज आल्सो ए वेरी फेमस पेंटर ऑफ दैट टाइम. बहुत उनकी बहुत फेमस हुई ऑयल पेंटिंग्स. इफ यू रिमेंबर 8th क्लास में भी एक पेंटर्स वाला आर्ट वाला चैप्टर हमारा आया था. तो ही इज ए वेरी वेल रिनाउंड पेंटर, बट भारत माता की इमेज उन्होंने पहली बार नहीं बनाई. रादर ही इज फेमस फॉर हिज माइथोलॉजिकल पेंटिंग्स, जो रामायण और महाभारत की ना माइथोलॉजिकल पेंटिंग्स, उस तरह के सीन वो बनाने में ही इज़ वेरी फेमस. ऑयल पेंटिंग्स, बट भारत माता के लिए पेंटर तो थे, बट भारत माता की फर्स्ट टाइम में उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, बस ये है थोड़ा सा. ठीक है, चलिए. एनी हाउ, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइमन कमीशन वाज बायकॉटेड इन इंडिया बिकॉज, आगे डैश. नाउ डैश इज टू बी फिल्ड बाय यू, ब्लैंक. Because there was no Indian person in the commission. Because there was no
आगे No Indian person Indian in that. leader. yes, perfectly right, because there was no Indian person या no Indian member word ज़्यादा ठीक है, because there was no Indian member in that commission. That's the right answer. Very good. Okay. हाँ, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको याद आ जाएगा नाम सुन के. The leader of militant guerrilla movement in the Gudaim Hills was, I repeat, leader of militant guerrilla movement in the Gudaim Hills. Gudaim Hills कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में. Gudaim Hills was, options हैं बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, एल्यूरी सीताराम राजू. Alluri Sitaram Raju. Yes, very good. Hint मिल गया ना? एल्यूरी गुदेम हिल्स को याद करना है. Yes, yes, very right. एल्यूरी सीताराम राजू वाला जो पॉइंट है हमारा, that is perfectly right answer. Okay. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन. हाँ, ये इंपॉर्टेंट है बेटा. Who was the author of the book हिंद स्वराज? Who was the author? Mahatma Gandhi. Yes, very right. Mahatma Gandhi wrote this book हिंद स्वराज. Okay. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन. हाँ, पहले मैं ऑप्शन बोलूंगी फिर ही आप बताइएगा. राइट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स हैज हेडेड अवध किसान सभा? विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स हैज हेडेड मतलब किसने प्रिजाइड किया या प्रधान कौन था, उसका हेड कौन था? अवध किसान सभा. ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस. Jawaharlal Nehru. Yes, Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru. Yes, very right answer. Jawaharlal Nehru is the right option. Very good. Okay. Next है, in which city? ये इंटरेस्टिंग है, ये मैप वाला भी क्वेश्चन है. जस्ट ए सेकेंड. हाँ, in which city महात्मा गांधी launched सत्याग्रह in 1916? चंपारण. हाँ जी, प्लीज टेल. Champaran. चंपारण नहीं, Champaran, Bihar. चंपारण. Pronunciation. Champaran. Bahar. Okay, can you please tell the state? Where is it? बिहार. बिहार में. Very Bihar. right. Bihar. Yes. ठीक है. अब याद करने का तरीका क्या है? 1916 आ गया ना, तो फ्रॉम 1916 ईयर से हमें हिंट मिल जाना चाहिए. चंपारण किस लिए दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड सत्याग्रह की? फॉर द हेल्प ऑफ इंडिगो फार्मर्स. इंडिगो जो प्लांटेशन के लिए जो फार्मर्स को फोर्स करते थे, ब्रिटिश प्लांटर्स, प्लांटेशन ओनर्स, उन फार्मर्स की हेल्प के लिए दिस सत्याग्रह वाज स्टार्टेड. ओके. अच्छा, इन विच सिटी महात्मा गांधी लॉन्च्ड सत्याग्रह इन 1918? 1918. गुजरात. Ahmedabad. अहमदाबाद. Ahmedabad. वेरी गुड. अहमदाबाद. ओके. अच्छा, इन हिज बुक हिंद स्वराज गांधी जी सेड दैट, मैं ऑप्शंस बोलती हूँ, यू विल लेट मी नो द राइट वन. गांधी जी सेड दैट द ब्रिटिश मस्ट क्विट इंडिया. क्विट मतलब छोड़ देना चाहिए. ब्रिटिश मस्ट क्विट इंडिया. सेकंड, इंडियंस मस्ट नॉट कोऑपरेट विद द ब्रिटिश. एंड थर्ड, इंडियंस मस्ट बी इन्वॉल्व्ड इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया. Should I repeat? Indians option. must not cooperate. हाँ, नॉट कॉपरेट वाला C जो option. ऑप्शन है. यस, बिकॉज हिंद स्वराज बुक में गांधी जी स्ट्रेस्ड ऑन दिस फैक्ट कि जो ब्रिटिशर्स हैं, दे हैव बीन एबल टू रूल हियर, दे हैव बीन एबल टू स्टे हियर फॉर सो लॉन्ग बिकॉज सम ऑफ द इंडियन पीपल्स वर कोऑपरेटिंग विद देम. इंडियंस ही उनका साथ दे रहे थे. दैट इज वाई दे वर एबल टू रूल अवर कंट्री. अगर इंडियंस ही साथ ना देते बिगनिंग से ही, तो ब्रिटिशर्स यहाँ पे टिक नहीं सकते थे, है ना. दे कुड नॉट हैव बीन एबल टू स्टे हियर फॉर सच ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड रूल अवर कंट्री एडमिनिस्ट्रेटिवली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली. तो दैट कुड बिकम पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ द इंडियंस. सो इसलिए वो चाहते थे कि इंडियंस शुड नॉट या मस्ट नॉट हेल्प देम या कोऑपरेट विद देम. ओके. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. Who organized the Dalits into the Depressed Classes Association? Dr. B.R. Ambedkar. Yes, very B.R. right. B.R. Ambedkar. Ambedkar. Yes, ये याद कर लेना. Who organized the Dalits into Depressed Classes Association? Dr. B.R. Ambedkar. Very right. अच्छा, next है,
Who was the author of the famous novel Anand Math? Who was the author of the famous novel? ये बहुत famous हुआ था उस time पे, बंकिम चंद्र 1870s. चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। Yes, very बंकिम right. चतर हाँ जी, चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. Very right. Okay. Let me find some other question. हाँ, Mahatma Gandhi started his famous salt march from his ashram in dash मतलब blank दिया हुआ है. I repeat, Mahatma Gandhi started his famous salt march from his ashram in dash to the Gujarat coastal town of dash. Options बता देती हूँ. साबरमती आश्रम टू दांडी। Very right. Before telling my options, you have told. हाँ, आएगा started from Sabarmati ashram और ultimately they reached in the town of Dandi. ठीक है, आश्रम था साबरमती आश्रम और reached Dandi town. Very right. Okay. Who was the writer of Vande Mataram? Who was the writer of Vande Mataram? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। Yes. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। Yes, ये आना ही आना है पेपर में, है ना, फाइनल पेपर में. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, मतलब many questions are related to him. अच्छा चलो, अच्छा अब नाउ जैसे 1 mark questions होते हैं ना, नाउ options are not given, you have to tell the answer in 10 to 20 words in one line, one sentence. What is the meaning of the term begar? Begar, B-E-G-A-R, begar. Laborers that were forced to contribute beg without any pay. एक मिनट, सभी नहीं बोलिए, पहले एक बच्चा बोल दे, एनी वन ऑफ यू, बिकॉज यू आर नॉट रेजिंग हैंड. और सुहाना बिंद्रा, हाँ जी सुहाना बिंद्रा, यू टेल बेटा. Labor that villagers were forced to contribute without any payment. Yes, when people, laborers in the villages, village areas में, when laborers, people were forced to do the work, but for that work they were not given any payment. कुछ उनको पैसे नहीं दिए जाते थे, फ्री में काम करवाना, that is called बेकार. Very right. अच्छा, अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. Who led the non-cooperation movement in Awadh? Who led the non-cooperation movement in Awadh? बाबा रामचंद्र. हाँ, किसने बताया बेटे? कौन सा बच्चा है ये? मनदीप. मनदीप. मनदीप बेटे, बाबा रामचंद्र या बाबा रामदेव हैं? बाबा रामचंद्र. हाँ, बाबा रामचंद्र. कई बच्चे क्या करते हैं ना, पहले मतलब पिछली क्लासेस में जैसे यही क्वेश्चन डाला तो एक दो बच्चों ने दे रोट द आंसर बाबा रामदेव. वो एक जैसा नाम है ना, तो रामदेव नहीं है. दिस द राइट आंसर इज बाबा रामचंद्र, जैसे मनदीप ने बताया. वेरी राइट. ओके, चलो एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं. हाँ, ये इम्पोर्टेंट है. हु फाउंडेड द स्वराज पार्टी? हु फाउंडेड द स्वराज CR दास एंड हाँ, मोतीलाल नेहरू. यस, वेरी राइट. 2 पर्सन से विद इन द कांग्रेस ही थे, तो उन्होंने अपना अलग से अपना थोड़ा काम शुरू कर लिया. देवर CR दास, फुल नाम है चितरंजन CR, ठीक है, फर्स्ट लेटर, चितरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू. वेरी राइट. ओके, अच्छा, गिव इन वन लाइन या वन फीचर ऑफ रॉलेट एक्ट. मतलब रॉलेट एक्ट के बारे में एनी वन फीचर. 1 mark में दिस हैज बीन आस्क्ड. It allowed the detention of political prisoners without trial for 2 years. Yes, according to this It was the act through which the government got enormous powers to repress political activities yes, और आगे भी बोल दो. ये जो आपने and बोला, allowed detention of political prisoners without trial for Yes. 2 years. yes. अगर आपको ये नाउ दिस क्वेश्चन हैज बीन आई आस्क्ड फॉर 1 mark, तो जो फर्स्ट लाइन है उसको छोड़ देना है, ठीक है. 1 mark क्वेश्चन मीन्स वी हैव टू आंसर हार्डली इन
वी कैन से 20 वर्ड्स, तो 20 वर्ड्स की हार्डली 1 या 2 लाइन्स ही बनती हैं, 1.5 सेंटेंस ही बनता है. तो उसमें देन वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, स्पेसिफिक पॉइंट आना चाहिए कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स दे वर केप्ट इन प्रिजन for 2 years without this concession of having trial. बस ये वाली लाइन आनी चाहिए. फिर वो ऊपर वाला जो आपने बोला ना गवर्नमेंट को एनॉर्मस पावर, वो छोड़ दो, क्योंकि उससे हमें एक्ट का मेन बात नहीं पता चल रही है. ठीक है जी. तो जब भी ऐसा 1 मार्क का हो ना, तो बड़ा पिन पॉइंटेड आंसर वी हैव टू गिव. ओके, चलो एक और क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम फिनिश करते हैं. लेट मी फाइंड वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन है. अब तो सारे क्वेश्चंस के आंसर कर ही दिए आपने. वेरी गुड. चलो अब ये मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन. नाउ दिस शुड बी आंसर्ड बाय ऑल ऑफ यू. अंडर whose leadership was civil disobedience movement launched? Under whose leadership civil disobedience movement launched? महात्मा गांधी जी. Yes, महात्मा गांधी. ठीक है, सबसे इजी क्वेश्चन. वेरी गुड. भूमि बेटे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जरा. With this I want to thank you all and I hope you have revised nicely. So we have tried to cover all the questions. हाँ जी, done भूमि?